cell of the society. I welcome students, delegates, expertise, and the today's successful story given by our entrepreneur, Mr. Mukesh Kumar, is a director of Uttar Consultant Private Limited, and giving as a brief, he has worked on the educational experience of 25 years, and having a partnership with a company like Hewlett Packard, we all must know that we have using the laptops of HP's, printers and other all electronic equipments nowadays. And with the other companies like Microsoft, Oracle, Java, Red Hat, Linux, Autodesk, Aptech Limited, AT and Bell Labs. Those who people basically have studied the basic electronics, they know the meaning of Bell robotics, the innovation which they have done till now. They have trained more than 4.5 lakh students in the last 25 years, and having comes with a huge experience with the participate over 1,000 colleges and institutes across the country, and he understands the practice follows in the country to interact with the lakhs of students. He understands the needs of the students at this particular time, at the time of the understand requirement of the company. So this basically completes a bridge between academic and industries, which is actually required nowadays. This lecture, motivational lectures, has come under the Institute Innovation Council. So let me brief about the Institute Council as well. What does mean it? It is basically run by the Ministry of Education of Government of India and promoting for many of the young students and young participants whosoever want to be come up with the innovative ideas and other things, want to be get away from the all doing apart from these academic activities. So this is a platform where they used to perform or they get some motivation or something which is exactly get a trigger to them to start with their things. So I welcome Mr. Mukesh Kumar, who is the director of Uttar Consultants, to please give his training lectures before this platform, and with his keynotes he will help us out to key successes of their stories to being as an thank you. Good afternoon, everyone. And I'll try to ensure that whatever I speak to you today is relevant to you, and would like to make the session as entertaining as possible. So, in the very first go, I'd like to tell you that I normally talk to these students without any PPT, right? So there is going to be no boring sessions of PPT, telling you about my story, about what I have done. Not many people are interested in knowing or maybe understanding what others have done. So everybody is more interested in their life. So today I'll try to talk to you about your life rather than my life. So I'll give you a brief about what I have done. मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है, मैंने क्या किया है, कितने धक्के खाए हैं, कितने धक्के खा रहा हूँ, कितने धक्के आगे धक्के खाऊंगा. So I'll brief you. I'm born and brought up in Kanpur, and I did my education here. Started working very early in life. I was all of 19. I had to start working because all of a sudden we had a very good business. All of a sudden that in a night it changed. So my father was virtually from a good and a healthy lifestyle that we had nothing in the next morning. So almost all the money gone, business gone. I was all of 19 and a half, I don't remember well. It was June or July. So after 19 and a half, 20 ka bhi ho sakta hu. So I had to start working. So my first journey of working started with going to factories and asking if you have anything that I can supply for you. And I started working in the area of exporters and tanneries and various saddlery exporters per se. So I was all of 60 kgs in weight, young, wanted to study management, wanted to go to IIM. So the only preparation that I did was learning. I worked really hard on my vocabulary and my mathematics, but that time there were just 4 IIMs, A, B, C, and L. And there were close to 600 odd seats.
और 600 सीट्स में जितने भी आईआईटी के स्कूल्स थे वो भी बैठा करते थे। तो आईआईटी के स्कूल के आगे मैथमेटिक्स में हम थोड़ा कमजोर पड़ जाते, जबकि मैथ्स हमारी अच्छी थी, बट they had studied far more than I had done. So I knew that I could not do that, and I did not want to go to any other college. So I said either I will go to IIM or I will go to do business. Started my business. From there I went to, I did that for 2-3 years. फिर मुझे लगा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं जाता हूँ, बोलता है कि ये सामान मैं 10 रुपए का खरीदता हूँ, मैं ढूंढने जाता हूँ कहाँ पे वो 8 रुपए का मिलेगा, मैं उसको 10 रुपए में बेचता हूँ, फिर उससे पैसा लेने के लिए उसके पास मुझे 4 बार 5 बार जाना पड़ता है। ऐसा नहीं बोलूँगा, आई डिड नॉट लाइक दैट। अच्छे अच्छे लोग मिलते थे, बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स थे, उनके साथ बैठने को मिलता था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। फिर मेरे को किसी ने बोला कि आप ऐसा करो, फुटवेयर डिजाइनिंग कर लो। तो अगर आप पूछेंगे कि मेरी क्वालिफिकेशन एक्चुअली में क्या है, तो मैं एक प्लेन ग्रेजुएट हूँ और एक फुटवेयर डिजाइनर हूँ। So I did a footwear designing course from Footwear Designing Institute. Thought of becoming a footwear exporter. जब हकीकत का थप्पड़ पड़ा तो पता लगा कि यार इसमें बहुत पैसे लगते हैं, एक्सपोर्ट यूनिट को सेटअप करने में तो बहुत पैसे लगते हैं। 8 महीने बाद 10 महीने बाद मेहनत करने बाद उसको जब डिप्लोमा वगैरह ले लिया, मेरा 8 मंथ्स का कोर्स था, 9 मंथ का कोर्स था, कंप्लीट करने के बाद रियलाइज किया ठीक नहीं। बट कहीं ना कहीं क्योंकि एक्सपोर्टर्स के बीच में जाते थे, एक्सपोर्टर्स के बीच में इच्छा होती थी उनको उनका लाइफस्टाइल देख के तो करना एक्सपोर्ट था। देन आई वेंट टू दिल्ली एंड फॉर 1 year आई वाज वर्किंग विद द लीडिंग इंडियन डिजाइनर। इंडिया की मतलब टॉप 5 डिजाइनर्स थी, उनके साथ मैं काम करता था। निकांजलि के लिए उनका नाम था और मैं एक्सपोर्ट के लिए गारमेंट्स बनाता था जो कि फ्रांस के सबसे बड़े रिटेल आउटलेट में मिलते थे। तो मेरा एक आपके लिए मैं फैक्ट्री चलाता था, वो मुझे गारमेंट्स काट के देते थे, हम उसको सिल के उनको ठीक ठाक करके उनको दिया करते थे। फिर वहाँ जाकर मुझे ये लगा कि यार मैं तो पहिए में एक जो उनका पहिया है उसमें मैं सिर्फ एक स्पोक, अगर पहिए का स्पोक टूट जाता हम लोग क्या करते थे, उसको ऐसे दूसरे स्पोक पे घुमाते थे, साइकिल में चले जाते थे। तो मुझे लगा मैं भी तो स्पोक हूँ, छोटा सा स्पोक हूँ, अगर कल को 1 टूट जाएगा, 2 टूट जाएगा, 3 टूट जाएगा, इसकी साइकिल चलती रहेगी, लेकिन मैं तो स्पोक ही रहूंगा। For 1 year तक I had close to over 60 odd machines. I was working in Delhi, and one fine day मेरा एक थोड़ा सा शिपमेंट खराब हो गया। मैं एक स्कर्ट बना रहा था और देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है। I was doing well, ठीक ठाक सा कर रहा था, लेकिन मुझे लगा था मुझे इसमें भी एक्सपोर्ट में जाना है और मैं तब स्कूटर चला रहा था और मुझे मधुमक्खी ने बोर्ड पे काट दिया यहाँ पर ऊपर और काटा, बोर्ड को ऐसे मोटा तरह से सोच गया। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और बोला कि यार ये सेडेटिव है, अब तुम घर जाके सोना, स्कूटर मत ड्राइव करना क्योंकि तुम बता रहे फैक्ट्री वाली 30 मिनट दूर में नींद आएगी। हम घर चले गए, हमने अपने लेबर को और मास्टर को फोन किया, बोला वो पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग बनाओ, उसको चेक कराओ और ठीक लगे प्रोडक्शन पे डाल दो। अब एक छोटी सी स्कर्ट थी, 10 इंच 12 इंच की स्कर्ट थी, 3 साइज थे। वो क्या कहता हाँ सर पास करा लाया हूँ, और पास करा भी लाया हूँ। पहले 50-50 पीस बना के बोले प्रोडक्शन डाल दो, मैंने डाल दो। मैं उस दिन फैक्ट्री नहीं गया और अगले दिन दोपहर तक फैक्ट्री नहीं गया, तब तक उन्होंने 8000 पीस बना के रेडी कर दिया। अब स्कर्ट जो होती है उसका शेप ऐसा होता है, ऐसा, लेकिन हमारी स्कर्ट की उसका शेप था क्यों? क्योंकि कपड़े में स्ट्रेच था, उन्होंने बनाया तो स्कर्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब वो कपड़ा जो था बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, क्योंकि वो यूजुअली जर्मनी वगैरह में, यूरोप में जो कपड़ा बिकता है वो तौल के हिसाब से बिकता है, इट इज नॉट पर पीस। आप कपड़े तौलिए हुए ये 40 मार्क तक मार्क चलता था उसमें जर्मनी में, तो ये 40 मार्क का ये इतना किलो कपड़ा मिलेगा, इतना कपड़ा मिलेगा, तो इस तरह की चीज थी। तो 40 मतलब 40 kg मतलब 40 मार्क्स पर केजी इस तरह का कपड़ा बिका सकता था। तो अब उसको ठीक कराने के लिए, तो उसको जब उसकी जो फोल्ड होता है, तो उसको फोल्ड को खुलवाने के लिए गए तो कपड़ा फटने लग गया। और जो लेबर ने मुझे तंग किया, मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं खून क्या हो गया। उस 8000 स्कर्ट को ठीक कराने में मैंने डिसाइड किया अब ये काम नहीं करूंगा। मतलब आई लिटरली हैड टू गो एंड बैक, और शिपमेंट की लेट हो रही थी। मतलब मैं रात को जाग के मैंने किसी तरह से बनवाया। वो तो चांस की बात थी कि जिस फैक्ट्री के साथ मैं काम करता था, वहाँ का जो मैनेजर था बड़ा दयालु टाइप का था। उसने बोला क्यों कुमार साहब क्या हो गया? मैं तो स्कर्ट खराब हो गई। कहता मैंने कहा था कपड़े में मतलब एक स्ट्रेच है, इसको ध्यान से सिलना। कहते कितनी स्कर्ट खराब हो गई? मैंने कहा कि 2000
अब आपने क्या किया, लार्ज को तो आपने मीडियम कर दिया, मीडियम को आपने स्मॉल बना दिया, स्मॉल का क्या करिएगा? अब वो किसी तरह से उसने मेरे को 400-500 कपड़ा चुपचाप अपने फैक्ट्री मालिक से छुपा के उसने मुझे कपड़ा दिया, बोले जाके बचा ले, नहीं तो तू यंग लड़का है, निपट जाएगा, तेरे इतने पैसे काट लेगा कि जैसे लेने पैसे निकल आएंगे, तू चुपचाप ले जा। तो मुझे 500 मीटर कपड़ा जो है उठा के दे दिया, बोले मैं स्टॉक में कहीं मैनेज कर लूँ, ले जा। दैट डे आई डिसाइडेड। और मैं जब उसके बाद मैं घर आया तो 10-12-15 रात जगे हुए का असर चेहरे पे दिख रहा था, पूरे आंखें नीचे काली और मतलब बिल्कुल बेहाल से एकदम। घर आए, पापा बोला ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो मतलब फंस गया इस तरह से। मैंने कहा पापा मैं सोच रहा हूँ जॉब करूँ। तो मैंने कहा पापा का बहुत लॉस करा दिया, फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब कर लेता हूँ। तो मेरे फादर जो थे, मेरा अपने पिताजी का मतलब जिसे कहते हैं कि एक लव हेट रिलेशनशिप था, जो हर लड़के का अपने फादर के साथ जाता होता है। क्योंकि फादर कहता है पढ़ो तो पापा बेटा मम्मी के पास जाता है, मम्मी देखो ना पापा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। लेकिन मैं आपको आज बता सकता हूँ, आई लॉस्ट माय फादर 2 years back and let me tell you like no father would like to see his son or his daughter doing not well. Please understand, whatever hardship I have faced in life, I would never like my son to face that. That is what I tell my 13-year-old son. Unfortunately, वो भी 13 साल के हैं, टीनेजर होने वाले हैं, तो वो कहते हैं मुझसे कहते हैं कि शार्प टैंक जब वो देखते हैं तो मेरी गलती निकालते हैं, पापा आईटी में आपके डिजिटल बिजनेस तो है ही नहीं। मैं भी अपने आईटी हेड मेरे साथ आया हूँ, उनको बता रहा था, मेरा बच्चा मुझको शार्प टैंक देख के कहता पापा आपने क्या किया है, यू हैव नॉट डन वेल। तो अच्छा भी लगता है सुनकर, नहीं भी अच्छा लगता सुन के। अगर तेरी फीस वगैरह सब इसी पैसे से आ रही है जो कर रहा हूँ, ठीक है, तू जो टेनिस खेलने जाता है, जो तू 10,000 का जूता पहनता है, 8,000-15,000 का रैकेट लेके चलता है, इसी पैसे से आ रही है। But at the same time, there are quite a few things which he tells, which he says, are very, very relevant. So, मेरे फादर ने मुझसे कहा, मेरा बेटा जो करोड़ों रुपए के सपने देखता था, कहता था मैं, तो पापा मेरे बहुत सिंपल से पर्सन थे, मतलब टैक्सेशन में चोरी वोरी नहीं करते थे, तो बिजनेस में से थोड़ी दिक्कत भी उनको होती थी। मैंने बस बोला पापा मुझे काम करने दो, मैं करोड़पति ऐसे बन के दिखाऊंगा। ऐसे ही मैं चुटकी डाले बोला, मेरे पापा ने भी ऐसे बोला बन के दिखाना, मैं एंड सो माय लव फॉर माय फादर, जिसे कहते हैं पिता के लिए प्रेम और रिस्पेक्ट उस दिन बड़ी जब उन्होंने कहा मेरा बेटा जितने बड़ा सपना देखता था वो थक गया, जरा से चोट से थक गया। और ही बिल्कुल फ्रेंडली टोन उन्होंने मुझसे कहा था। उससे पहले जब हम कॉलेज में थे तो ठीक है, हम उसे डर के रहते थे थोड़ा, मतलब वो जो हम लोग बचपन में अपने यहाँ पर गेम खेलने के लिए चुंबक वाला गेम होता था, जिसमें एक मैग्नेट से लेकर नंबर पे डालते थे, जिसके नंबर हाई होते उसको मार्क्स मिलते थे। अब आपको गेम नहीं आता, पहले आया करता था इससे करके। सो पिन बॉल अगर आपने खेला हो तो जो कंप्यूटर में पिन बॉल गेम आता तो वो गेम, तो पापा बेडरूम में तो हम ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में तो हम किचन में, किचन में तो हम बाथरूम में हम घर के बाहर। और पापा का ट्रैवल का जब हमको शेड्यूल पता लगता था तो उसे तो शादी कोई नहीं, पापा 4 दिन के लिए जा रहे हैं, अब एटलीस्ट ये तो नहीं पड़ेगी, इससे तो बच जाएंगे। सो व्हेन ही सेड कि सपना देखते थे यार, क्या हुआ सपने का, इसी में आज हो गए। मैंने कहा मतलब फिर मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं मैं जॉब करूंगा, मैं उससे सीखूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, बट ही वाज नॉट कन्विंस्ड। ही सेड नहीं, डोंट वरी, स्टे इन कानपुर फॉर 1-2 months, we'll figure out what you'll be doing. मेरी हेल्थ को देख के थोड़ा कॉन्शियस हो गया कि मैं काफी रनिंग और स्पोर्ट्स वगैरह में काफी एक्टिव था। अभी पिछले मैं लास्ट 32 years, दिस इज द 3 months, लास्ट के 3 महीने बीते, ये पहले 3 महीने 32 साल के मेरे लाइफ में बीते, तो मैंने एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए सवेरे नहीं उठा, अदरवाइज आई एम एविड रनर, आई रन 10-15 kilometers, आई प्ले टेनिस ऑलमोस्ट एवरी डे। सो उन्होंने वो मेरी हेल्थ को देख के थोड़ा सा कॉन्शियस थे। सो लेसन नंबर 1, never get disheartened, never ever get disheartened। Remember, जिस दिन आपके पास एक यू टर्न होगा, आप यू टर्न लोगे। लाइफ में जब भी काम करने जाना, प्लान ए के बाद लोग कहते हैं प्लान बी होना चाहिए, लेकिन प्लान बी
बहुत ही एक्सट्रीम केस में सोचना, क्योंकि जिस दिन तुम सोचोगे तुम्हारे पास प्लान बी है, तुम प्लान ए पे 100% कभी काम नहीं करोगे, कभी भी 100% प्लान पे काम नहीं करोगे। दूसरी चीज, the wisdom which your parents can give you, which your father can give you, which your mother can give you, and if you are lucky to have grandparents, if you have got nana, nani and dada, dadi at home, the wisdom that they can give you, no book in this world can give it to you. No book in this world can give it. I can vouch for that 500%. And if they don't know how to use WhatsApp, if they don't know how to use YouTube, if they don't know how to use Facebook or maybe any other thing, don't think that their wisdom is lacking, because they have seen life more than you. And believe me, what you can learn from their wisdom, no book in this world can tell you. They are your true friends. So, in 1995, I got an opportunity to enter into education. I took a franchise of Aptech Limited. I ran a center of Aptech for almost 15 years. And when I was running Aptech, तब मुझे लगा कि इंग्लिश का बड़ा तगड़ा स्कोप है, तब कॉल सेंटर्स मैंने खुल रहे थे। तो मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आपको मैं बता रहा हूँ। तो 99-2000 में मुझे कभी भी एक काम करते हैं, कभी मैं एकदम स्टेबल नहीं होता था, मेरे को मुझे लगता था कुछ और भी करना है, कुछ और भी करना है, कुछ और भी करना है। तो मैंने 99-2000 में इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, लैंग्वेज पॉइंट करके। कानपुर में पहला इंस्टीट्यूशन था जिसकी होर्डिंग लगती थी, खूब बड़ा सा बनाया मैंने, एनसीईआरटी के टीचर्स से अपना कोर्स कंटेंट पूरा डेवलप करवाया। 2 साल चलाया, फिर मुझे लगता था इसमें तो 800-900 रुपये फीस आती है, एपटेक में आती थी 3200 रुपये फीस बच्चे की पर मंथ की। मैंने कहा 900-3200 थोड़ा डिफरेंस है, जबकि वो 900 का मार्केट वाज 20 टाइम्स देन 3000 का मार्केट, बिकॉज एवरी स्टूडेंट वांटेड टू लर्न इंग्लिश। अब तो बहुत सारे बच्चों की कंपैरेटिवली कम्युनिकेशन स्किल्स तो नहीं इंप्रूव हुई, बट हाँ इंग्लिश कंपैरेटिवली इंप्रूव हो गई है। आज आपके घर में मेड भी जो आती है, उसके जो टर्म्स होते हैं, जो कुछ वर्ड्स वो यूज करते हैं, दे आर लॉट टू डू, मतलब इंग्लिश में काफी हद तक वो लोग कंफर्टेबल है। सो 2 साल चलाया, उसका बोला मजा नहीं आ रहा, एक्ट होता है। फिर मैंने AT&T बेल लैब्स के साथ में टाइप किया। तो तब मोबाइल नए आ रहे थे, तो GSM और CDMA टेक्नोलॉजी होती थी। अब तो CDMA टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलती है, पहले जब रिलायंस का नया फोन आया था, दैट वाज ऑन CDMA टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ यू पता नहीं तब के पैदा भी होंगे नहीं होंगे, क्योंकि 2001-2002 में जब रिलायंस ने कहा था ना कर लो दुनिया जेब में मुट्ठी में, 500 रुपए के फोन उन्होंने बांटे थे, तब टावर बहुत कम होते थे। तो हमने AT&T बेल लैब्स के साथ मिलकर हम ट्रेनिंग देते थे, जो कि टावर्स को जाके उसकी पावर उसको चेक करते थे। एक कार को चलाया करते थे, रोड्स पे जाते थे, वेरियस एरियाज में देखते थे कहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, उसका टावर पे एक लड़का चढ़कर उसको पूरा ठीक किया करता था। 20-25 हज़ार रुपए का कोर्स होता था और बच्चे को 25,000 की जॉब लग जाती थी, 40,000 की जॉब लग जाती थी। लेकिन उसको जाना पड़ता था बड़ी रिमोट जगह पे काम करने, क्योंकि अब शहर में तो टावर लग चुके थे, तो उसको रिमोट जगह पे जाना पड़ता था टावर्स में काम करने। इवेंचुअली मैं वाज रनिंग दिस एपटेक, तब कोई जैसे AT&T बेल लैब्स को थोड़ा दिन तक किया, साल 1.5 तक किया, बोला उसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ और चीज चाहिए। देन फॉर्चुनेटली आई हैड अ पार्टनरशिप विद अ कंपनी कॉल्ड एज Hewlett Packard। HP नाम सुना ना आपने? प्रिंटर है। तो it is HP was actually, I don't know how many of you are aware or not, HP was actually a printing company पहले। HP was not a laptop or a desktop making company। HP was into printing। HP was primarily a printing company। Then they took digital, एक बहुत बड़ी कंपनी जो बढ़िया सबसे वर्ल्ड के टॉप क्लास सर्वर बनाती थी, डिजिटल नाम की कंपनी थी, उसको टेक ओवर किया। एंड देन उन्होंने लैपटॉप और बाकी बिजनेसेस में भी वो लोग उतरे, फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर डिवीजन भी अपना खोला। सो मैं उनका ट्रेनिंग पार्टनर बना फॉर एंटायर इंडिया। सो एनी ट्रेनिंग हैपनिंग इन एनी कॉलेज और एनी कंपनी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ Hewlett Packard was taken care by us। So in that particular area, I had a wonderful opportunity of visiting colleges across the country। So if you talk in terms of, please pass not करिए, it actually disturbs me please। If you are not interested, आप जा सकते हैं उनके बाद, nobody knows stop you please, but don't lose this money, it puts me off, right? So I had a wonderful opportunity of going to a lot of colleges, lot of universities across the country। So personally, I must have been to close to more than 1,000 plus colleges। So starting from जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू में गया हूँ, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, एंड सिर्फ अगर आप साउथ के 4 स्टेट्स ले लीजिए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और थोड़ा सा आंध्रा एंड बिट ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप 5 स्टेट्स को छोड़ दिए, बाकी आई हैव ट्रैवल्ड टू एवरी स्टेट एंड मल्टीपल टाइम्स, worked with top universities across the country. I have worked with all the 29 NITs across the country. There are 29 NITs. I have worked with all of them. I have worked with a lot of IITs also. I have my organization has worked with VIT, SRM, KIT Bhubaneswar is one of my biggest clients even now. KIT University, Graphic, you name a university across the country. चाहे वो शारजा हो, चाहे वो बाबू बनारसी दास, you name a university in UP or maybe any part of the country. I work with Banasthali, I work with JCRC, I work with Modi Seeker. To name a top university, we work with that. And I must have interacted with ज़्यादा नहीं तो 2-2.5 लाख बच्चों से तो मैंने खुद इंटरेक्ट किया होगा. यहाँ तो ऑडियंस 100 की है, 150 की है. I have interacted with auditoriums of 1,200 students sitting at one given point of time, and I'm talking to them extempore. I have this is the first time to be अभी hand वाला mic आया है. I normally don't stand up at a place and talk. I normally walk around and talk to the students. If I am with the students, I try to be your friend. I don't try to be a mentor or a guide. क्योंकि हम लोग mentor और guide की और किसी की नहीं सुनते हैं. हमको अपनी बात समझ में आती है अपने दोस्त की. We have more faith in our friend than anything else. Am I right or not? Yes. Am I right or not? Tell me. Yes, sir. We okay, now I'm audible to all now. Yes, sir. So we listen more to our friends than anybody else. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. I hope you all had lunch, huh? If you did not have it after some time, don't worry. So we listen to our friends. So I'll share the experience that I had with interacting with so many students and going to so many colleges. I have always looked at students from a different perspective whenever I enter into a college. Believe me, whenever I enter into any college, especially some colleges जो कि जहाँ पर academics अच्छा है, जहाँ पर the quality of students is good, जहाँ पर quality of student की बात तो नहीं बोलूँगा ना, तो जहाँ पर बच्चे का जो energy level है, जहाँ पर थोड़ी सी अच्छी होती है, वहाँ पर जब मैं कॉलेज के अंदर घुसता हूँ तो मुझे वो student नहीं दिखाई देता, मुझे वो male female नहीं दिखाई देता, मुझे दिखाई देता है it's a dream. एक ड्रीम है जो कि 2 पैर पे चल रही है, एक सपना है जो 2 पैर पे चल रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो अपने आप में यूनिक है. The student is unique. The student is unique. Every student is unique. And I see dream because every student who comes into any institution normally comes with a dream. Everybody wants to be something or the other in life. Studying is a journey towards your dream. It's not the destination. वो आखिरी पड़ाव नहीं है, वो एक रास्ता है जो आपको कुछ 4 साल के लिए, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए आप जो भी कोर्स में करने के लिए आए हैं, आपको उसको पार करना होता है. तो आप एक सपना है जो चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर एक सपना है जो चल रहा है, और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही कुछ बेसिक चीजें जो आपको करनी होगी. और जो भी बात मैं आपसे आज कहूंगा, whatever I am going to talk to you about today is going to be absolutely general and it's going to be something which you all know. There is no rocket science which I have come to tell you, because today's generation does not need to be told about anything, for the simple reason that the students or the generation of today is not aware compared to what we were. जब हम स्टूडेंट थे तो करियर गिनती के 10 होते थे. आप इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, मर्चेंट नेवी चले जाओ, फौज में चले जाओ, होटल मैनेजमेंट कर लो, मैक्सिमम 10-12. आप किसी अगर कोई पेरेंट बच्चा अगर बोले कि मुझे म्यूजिशियन बनना है तो डांट हो जाती थी. आज बच्चा बोलता मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं मल्टीमीडिया में एनिमेशन करना चाहता हूँ. The opportunities are humongous. You only need to know what attracts you. कौन सा ऐसा काम है जो आप करते हैं जो कि आपके करियर के लिए अच्छा है और वो आपको एक्साइटमेंट देता है, आपको थकान नहीं देती. It is said when you love your work, you don't work. जब
कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है तो हम बिना खाए हुए भी 10 घंटे तक, 12 घंटे तक, 14 घंटे तक, 16 घंटे तक हम काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम आपका जब कोई काम हमको नहीं पसंद होता, मानिए अगर हमको पढ़ाई नहीं पसंद है तो किताब खोलते हैं तो नींद आने लगती है। आप कभी गौर करिए, जब एग्जाम होते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि एग्जाम जिस दिन खत्म होगा तो दबा के सोएंगे, लेकिन जब आप एग्जाम देकर आते हैं उसके बाद आपको जल्दी नींद ही नहीं आती। देखिए स्टूडेंट की साइकोलॉजी जब हम भी गए तो वो और आज में कोई बहुत फर्क नहीं आया, मोर और लेस इट रिमेन्स द सेम। तो आई रिमेंबर हमारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हुआ तो हमने कहा था मैं आज बिल्कुल 24 घंटे सोऊंगा, और मुझे याद पड़ता था 6 घंटा नींद भी नहीं आई। राइट, सो my interaction with thousands of students, lakhs of students, and whenever I have talked about कोई मैंने सेशन या सेमिनार कोई बच्चों का लिया है, there are few things which have come out very very common, and some of the common things are students have the desire to do it. Everybody has a desire to do it. But they lack one thing, one biggest thing that you lack. Every student lacks, every professional lacks. Tell me. Not really. मान सकता हूँ कॉन्फिडेंस कुछ हद तक होता है, बट उसको काफी पीछे हुआ। Yes, next. किसने बोला कंसिस्टेंसी? Yes. So मैं आपको चॉकलेट दूंगा इसके बाद। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का दूसरा वर्ड क्या है? Perseverance. Very correct. So, in life, if you want to succeed, you need to be consistently persistent or persistently consistent. Talent will take you to a certain area, but talent without hard work and consistency will not take you anywhere. I don't know whether आपने कभी रशा भोगले का YouTube पे देखा नहीं देखा, what is the difference between Tendulkar and Vinod Kambli? Vinod Kambli was far more talented than Tendulkar. Talent can take you to a certain end, but उसके बाद आपका consistency और persistency आपको आगे ले जाएगा। और consistency और persistency का एक ही रूल होता है कि जब आप एक काम करने लगते हैं तो आपको अपने ब्रेन को प्रेशर डालना होता है। You have to put a lot of pressure on your brain. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है, हमको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। Your brain has to work hard. It's like अगर आप 2 किलो डंबल रोज उठाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपको वो आज कोच ने कहा 3 किलो उठाना, कल 4 उठाना, परसों 5 किलो का उठाना। उसी तरह से आपकी ब्रेन जो है वो भी आपको एक्सरसाइज करने को बोलती है। और अक्सर हम लोग क्या होता है, थोड़े देर करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। हम लोग सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आप लोग का है? डोंट वरी, मैं कुछ सवाल ही पूछूंगा। आप लोग सबका फेवरेट सब्जेक्ट है कोई ना कोई? फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट क्यों होता है? क्यों? इंटरेस्ट आता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्यों आता है? समझ क्यों आता है? अच्छा क्यों लगता है? मेहनत कब पड़ती है? मेहनत कब क्यों पड़ती है? पहले से मेहनत की होती है। ठीक, तो ये साइकिल जो होता है, एक साइकिल का जैसे पहिया होता है ना, ये बिल्कुल वैसे है। मैं तो पॉलिटिकल बात नहीं बोल रहा, सॉरी। सो यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करते हैं, आपको समझ में आता है, समझ में आता है तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप उसमें और मेहनत करते हैं, थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। और क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपका कॉलर उठ जाता है थोड़ा सा आगे वाला। ये सब मेरे होते हैं, इससे पूछो इसको सबसे अच्छा आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। आप बोलते हो जैसे वाली मैथमेटिक्स है, या फॉर दैट मैटर सी है, या C++ है, या जावा है, जो सब है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ विल स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग अ बिट ऑफ ब्रेन into it. Right? Be it your education, be it entrepreneurship, be it, मैं अभी आपको एजुकेशन के पार्ट पे लेके जा रहा हूँ, और एजुकेशन के पार्ट के बाद ले जाऊंगा मैं आपको
एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में मैं आपको ले जाऊंगा कि कैसे जो आप आज आदत बिल्डअप करेंगे कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे ले जाएंगे। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट विद दैट बिट ऑफ एफर्ट, यू नो। क्योंकि पीएसआईटी तो एक निराला कॉलेज है, मेरे अपने 1000 कॉलेज में गए हुए मैंने इतने सिस्टम के साथ में इतनी अटेंडेंस मैंने तो अपने लाइफ में नहीं देखी। मैं आज से 3 साल पहले जब कॉलेज आया था, मैंने केम टू पीएसआईटी 3 इयर्स बैक। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सी की ट्रेनिंग की होगी ना, तो सब हमारी टीम कराती है, ठीक है। जितने भी सर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, वो हमारी टीम पढ़ाती है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पीएसए पढ़ा था ना, तो वो हमारी टीम में पढ़ाती है। तो मैं जब 3 साल पहले यहाँ पर आया था, तो मैं मनमोहन सिंह के रूम में गया, मैंने कहा सर आज छुट्टी है क्या? कहते क्यों? बोले तो चुपचाप है, तो बच्चा नजर नहीं आ रहा है। कहते नहीं, इस कॉलेज के अंदर 6800 बच्चा मौजूद है। तो मैंने कहा तो ये भी मेरे साथ आए थे, नहीं आए थे, मुझे ध्यान नहीं। मैंने कहा सर अच्छा, मैं सबको दिख तो नहीं रहा। कहते यहाँ पर ऐसे ही है। No, I'll tell you the difference. I'll tell you, मैं मतलब सो मेरे बड़ा अजीब सा था सर, इतने सारे बच्चे, मतलब जिस कॉलेज में 3000 बच्चे होते हैं 1500 तो बाहर दिखते हैं, 1500 आए नहीं होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मैं टॉप यूनिवर्सिटीज में गया, मैं टॉप के कॉलेज, पूरा ग्रेटर नोएडा मेरा पूरा एक कॉलेज घुमा हुआ है। मैं एक कॉलेज का ट्रेनिंग पार्ट कर रहा हूँ कभी ना कभी, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो वहाँ का कॉलेज हो। आई हैव वर्कड विद एवरीबॉडी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यू नेम इट, इलाहाबाद। I have trained all the colleges. I have trained all the colleges. I work in the East also. East में बहुत सारे NITs को मैं पढ़ाता हूँ, NIT सिलचर, NIT अगरतला, NIT मणिपुर, NIT भुवनेश्वर, सब मेरे क्लाइंट हैं। So you know what happens is that most of the students do not know what is good or bad for them. एक कॉलेज के अंदर अगर आप एक कॉलेज का अगर आप डेमोग्राफिक देखेंगे तो ज्यादातर कॉलेज में क्या होता है कि 40 से लेकर 50% बच्चा ऐसा होता है जो कि करियर के लिए बहुत सीरियस होता है और बहुत ध्यान से पढ़ता है और फोकस होता है। किसी कॉलेज में 40 होगा, किसी में 50 होगा। 30 to 35% बच्चा ऐसा होता है कॉलेज के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, जो कि वो इधर भी जा सकता है और वो इधर भी जा सकता है। It can go towards the good side, it can go towards the not so good side. I don't call a bad side, क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि जो 15% बच्चा जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। I never say that, because हो सकता है उसकी लाइफ में उसको चीज क्लिक ना कर रही हो, पेरेंटल प्रेशर की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। So I don't even discourage them, I don't even talk, और मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं, नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अच्छे और खराब का डिफरेंस सिर्फ ये है कि पोटेंशियल होने के बावजूद अगर कोई आदमी कोई चीज ना करे तो थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, क्योंकि माँ बाप जो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनका हार्ड अर्न मनी नहीं है, वो हार्ड अर्न एंड सेव्ड मनी है। कि अगर उनकी तनख्वाह अगर 1 लाख है और 70,000 का घर खर्चा, तो 30,000 जो बचाते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। वो 1 लाख से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो 30,000 जो सेव करते हैं उससे इन्वेस्ट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज एट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस स्टूडेंट क्या करता है कि वो एंड में आता है, 4 साल तक कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई प्रिपरेशन नहीं करता, उसके बाद वो बोलता है मेरा कॉलेज ऐसा था, मेरा ये ऐसा था, मेरा दुनिया भर का दोस्त है। बट अगर आप इंट्रोस्पेक्शन अगर आप देखेंगे, अगर आप रेट्रोस्पेक्शन अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि if you start working every day 1 hour for yourself, just 1 hour for yourself, 1 घंटा मेरे लिए, और 10 मिनट आपको चाहिए रोज के इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। As a student, you have to just sit for 10 minutes every night. एक कमरे में, ये इनफैक्ट हर इंसान को करना चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि इतना खराब लगता है सोचने के बाद कि आदमी करता नहीं।
आप 10 मिनट के लिए कोशिश करिए कि आपकी जो चद्दर बिछी हो सफेद हो, आराम से आप बेड पे बैठिए और आप बोलिए मैंने आज अपने दिन में अपनी लाइफ के साथ में क्या किया. Did I do justice to the one wonderful day I have spent with myself that I have lived? क्या मैंने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन किया? एक कॉलम बनाइए, yes और no. क्या मैंने कहीं टाइम वेस्ट किया? Yes और no. क्या मैं अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकता था? Yes या no. Have I done justice to the potential that I am? That God has given me, Almighty has given me, the potential that you have. Yes or no. और जब तक उस 10 सवालों में से आपको अपने आंसर नहीं मिल जाए और उसको आप रोज बना के रखिएगा. अपने आप को इवैल्यूएट करने से अच्छा there is no second technique. There is no second technique to evaluate yourself. Rather than somebody else coming and telling it to you, you must know what is good and what is bad for you. And believe me, life is all about 10 and 90. Have you heard this? Life is all about 10 and 90. 90% of your life will depend how well you invest your life's 10% time. अपने जीवन का 10% समय आप अगर बढ़िया तरीके से बिताओगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ का 90% जो पार्ट है वो बिल्कुल स्मूथ चला जाएगा. क्योंकि वो 4 साल में आप अपने दिमाग को जोर डाल के उसको एक्सरसाइज करके इतना स्ट्रांग कर चुके होंगे कि आप जब भी कोई नया काम करने जाओगे तो आपको उसमें मेहनत नहीं लगेगी. Get your brain into a habit of working hard and practicing more. ये एक दिन में नहीं आएगा. It is not a magic wand कि मैं आज आपको बता देगा बोलना कल से मैं करना चाहता नहीं. It will take time. So plan for next 30 days. So for next 30 days I am going to do this with myself. Believe me, it is going to do wonders. Persistently consistent or consistently persistent. And let me tell you, in our heart, everybody knows what I am doing is right or wrong. We may not listen to it. In our heart, everybody knows. कहा जाता है कि जो काम में हमारा मन लगता है, जिस काम में हमारी इनर वॉइस कहती है करेक्ट है और जिस काम में हमारा ब्रेन भी कहता है, देखिए हमारा दिल जो है क्या कहता है, काम को कर लो, चले जाते हैं. दिमाग कहता है नहीं, कल एग्जाम है, मत जाओ. दिल कहता है अरे क्यों मारते हैं, बड़ा दिन बाद मौका लगा. दिल कहता है राइट, दिमाग कहता है नो. फाइट होती है. यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो. कौन जीतता है? यस. We listen to our heart. We don't listen to our head. Leaders are those who listen more to their head. Go with what is right and correct for you. Right? So, कहा जाता है कि जहां पर आपका माइंड, आपका हार्ट और आपका इनर वॉइस, all these three things combined, संगम ही बनता है. So, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा. नास्ति बुद्धिरेतः नचावतः भावना नचावतः शांति शांतः सुखम, भगवत गीता का श्लोक है. For an uncontrolled mind there is no knowledge. For a mind without knowledge there is no peace. For a mind without peace can there be happiness? मनमना भव भक्तो मत्यादि मान मस्तु मामे वैकति युक्ता है मान मत. Listen, whenever you want to do anything in life, जो आपके जीवन का गोल है, आप उसको नमस्कार करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए और उसको सर्वा जानिए. You will be able to achieve that. Once you, पहले बोलता था कि हम पढ़ेंगे, हम उसका एक जॉब लेंगे, हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर हम बिजनेस करेंगे, फिर हम इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचेंगे. But now times have changed. How many of you have watched Shark Tanks? Sony पे?
पूरा आप देखिए, ओके, काफी लोगों ने देखा है। सो व्हाट वाज लर्निंग फ्रॉम शार्क टैंक्स? इनोवेटिव आइडियाज। आपने देखा कैसे इवैल्यूएट करते हैं लोगों को। देखिए आज आप लोग उस स्टेज पे हैं जहां आपको अपनी अर्निंग के बारे में नहीं सोचना है, अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करने के बारे में अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, 2 साल के बाद आपको सोचना है। You all are probably in your second year or maybe your third year. But in your second year or third year? Second year. In a country like India, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप अगर आप रास्ते से आते हैं तो आपको अपने बस में या अपने व्हीकल में आपको हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखती होगी। रोड अच्छा नहीं है, ट्रैफिक अगर यहाँ लाल बत्ती की जगह ऐसे कर दें, अगर यहाँ पे ऐसा मजेगा कर दें कितना आसान हो जाए। मैं एक प्रोग्राम रन करता था टाई द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बच्चों के लिए प्रोग्राम होता था टाई यंग एंटरप्रेन्योर्स, मतलब क्लास 12 के बच्चे इनोवेशन प्रोजेक्ट बनाते थे। कोई कहता है इंडिया में कूड़ा का बहुत समस्या है, कोई कहता था कि जो खाने के बाद बहुत सारा जो गाड़ियाँ टूटी टूटी रखी होती हैं उसका लोड बहुत ज़्यादा है, कोई कहता था पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोई कहता था दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलती, कोई कहता एवरीबडी हैड डिफरेंट। सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स which require a solution. For example, आप कोई चीज पढ़ना चाहते हैं और आपको हो सकता है कि वो YouTube पे या Google पे वो स्ट्रक्चर तरीके से आपको नहीं मिल रही है। You want to learn anything very specific. This is a problem. You can actually ensure that it becomes you find a solution to that. और आज की डेट में देखेंगे तो सब कुछ सारा जो भी अवेलेबल है वो टेक के ऊपर अवेलेबल है। और हमारी जो जनता भी है, जो हमारी पॉपुलेशन भी जो है, इट हैज बिकम वेरी मच अवेयर। सो मेक योर ब्रेन मोर इंक्विजिटिव, फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम्स आर। सबसे पहली चीज है ये आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहां पर है। और प्रॉब्लम शुड बी बिग इनफ, प्रॉब्लम छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बिजनेस आपका स्केल ही नहीं हो पाएगा, राइट? तो और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मतलब बोलिएगा मुझे जॉब मिलेगी, हमको सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, ये भी नहीं कह रहा हूं। इट इज आल्सो नॉट अ बैड आइडिया टू वर्क इन अ कंपनी फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, टेक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड देन जंप इनटू द innovation and entrepreneurship area. But there are a lot of things which you can start right now. You can build a lot of applications which can solve a lot of problems worldwide, and it can provide you with a solution, and it can give you money. If you want to do it alone, do it alone. If you want to do it with your friends, like-minded friends. देखिए आजकल क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एक फैक्ट भी है। हम क्या करें, हमने एक स्टार्टअप बना दिया। मुझे स्टार्टअप सुनने में बहुत अच्छा लगता है वर्ड, हमारा एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप का होना और स्टार्टअप का को एग्जीक्यूट करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। So how many of you first of all want to become an entrepreneur? Raise your hand. Okay. So you don't want to become an entrepreneur. All of you want to take a job. कभी सोचा ही नहीं? 3 कैटेगरी है, सोचा नहीं, नहीं बनना चाहते, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो बताइए, how many of you कहेंगे हमने सोचा ही नहीं कभी? Raise your hand. Don't be afraid. ये मत देखिए किसने इसने उठाया, मैं उठा। जीवन में दोस्त 5 होते हैं, ध्यान रखना। माँ बाप तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बहन भाई कितनी मर्जी लड़ाई कर लीजिए वो आपके साथ रहेंगे। आपका ज्ञान, आपकी हेल्थ और आपका टीचर, इसके अलावा 5वां कोई दोस्त नहीं होता जो आपके साथ घूमते हैं, या आपके साथ जो आपके 199 फ्रेंड्स हैं या 299 फ्रेंड्स हैं फेसबुक के ऊपर, वो सब आपके एक्वेंटेंसेस है, कोई आपकी मदद के लिए लाइफ नहीं आएगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं। When I was in bad shape in my business, I wanted to borrow 1 lakh rupees from my closest friend, and he refused. He said, "यार अभी तो है नहीं दिक्कत नहीं है."
and he is a big businessman. They all refuse. तो बताइए, सोचा कितने लोगों ने? रेज योर हैंड्स. जस्ट नॉट थॉट अबाउट इट. नो शेम, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सोचा कोई बात नहीं, आज से सोचेंगे. अब बताइए, अच्छा कितने लोग बनना ही नहीं चाहते थे? बोले रेज योर हैंड. बोले नहीं, सवेरे जाएंगे नाला के काम करेंगे, तीसरे दिन मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, 10 लाख 12 लाख सैलरी मिले, मैं आराम से सवेरे जाओ शाम वापस आओ. ये पूरा हाल करना, ऐसे नहीं पूरा. अच्छा अच्छा, जॉब करना चाहते हैं. अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप कितने लोग करना चाहेंगे? ओके. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं बाद में एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे? देखिए, हाथ जब ऐसे उठता है तो मतलब अब सब देख रहे, नजर पड़ गई, हाथ ऊपर रखने नीचे. और जो एक्चुअली में आपके अंदर जोश होता है तो हाथ होता है वो ऊपर जाता है खाने के. सो either it is 100% or it is 0%. There is no midway. And believe me, today, in today's world, the way the things are changing, just dynamic speed से चीजें change हो रही हैं, आपको ये सब डिसीजन बहुत ही जल्दी लेना पड़ेगा. एंड जो मैंने आपको बताया कि जो 10 मिनट आप रात को करेंगे, ये आपको हर महीने 2 महीने में एक लंबा टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहिए. हम लोग सब ट्रैवल करते हैं ना, दूसरे शहर जाते हैं घूमने के लिए, जाते नहीं आते आप लोग? तो ऐसा करिएगा, अगली बार जो है एक सोलो ट्रिप ऑर्गेनाइज करिएगा. सोलो ट्रिप. ये किसी के पापा भी ना जाने को दें तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मेरे से बात करा दीजिए. जिसके पापा भी मना करें आप मेरे से बात करा दीजिए. ठीक है, ठीक है. आप मैं आपको नंबर दे दूंगा, मेरे से बात करा दीजिएगा. मैं आपको कन्विंस कर दूंगा दैट योर चाइल्ड शुड ट्रैवल अलोन. देयर इज नो इट्स सेफ टू ट्रैवल. चलिए, विल कम टू द पॉइंट. राइट, एवरी 6 months ideally you should travel all alone, अकेले. और जो यहाँ पे मैरिड फैकल्टी भी है, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा they should travel once. ये बात अलग है कि वाइफ झगड़ेगी और बच्चे नाराज होंगे, लेकिन आपको 2 दिन के लिए कहीं जाने वाला वृंदावन जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, मैं वहीं चले जाइए. बोले पूजा करते हैं, बोले ठीक है जब पूजा आप ही करें, हम लोग पता नहीं निकाल लेना. सो sit with yourself. Sit with yourself. No music, no iPods, no music, nothing. Just contemplating and talking to yourself. What do you want to do? आप जाइए, walk करिए, morning walk करिए, and just spend that time with yourself. No, don't make any phone call. सिर्फ मम्मी को बता दिया, उठ गए सवेरे, अपने खाना खा लिया, रात को सो रहे. बस घर वालों से कांटेक्ट करिए. किसी फ्रेंड से कोई बात नहीं, क्या मौसम बहुत अच्छा है, तुम भी चले आओ, बहुत अच्छा चले आओ. नहीं, you have to sit all alone and talk to yourself and find out, are you doing justice to your life or not? Are you doing justice to your caliber or not? Those are some very pertinent questions that you need to ask yourself. What I want to do. Where should I be 5 years hence, 2 years hence, 1 year hence, 6 महीने के बाद? अगर आज आप क्लास में 60 क्लास में अगर आप 15 नंबर पे आते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट 6 months में आपका क्या टारगेट है. You want to stay here or you want to improve? How many of you would like to stay or how would you like to improve? Everybody would like to improve, no? तो आप ये सोचिएगा कि आज मैं 14वें नंबर पे हूँ या 15वें नंबर पे हूँ, मुझे अब 6-7वें नंबर पे आना है. मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई पैड पेन पेपर लेने की जरूरत नहीं है. आप तो सब फोन पे नोट्स बना सकते हैं. आप अपने नोट्स बनाइए. मेक मेंटल नोट्स, राइट इट डाउन. What you want to do 1 year hence, what you want to do 2 years hence, what you want to do 5 years hence, what you want to do 10 years hence. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 ईयर के प्लान को स्टिक कर जाना, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे पता होना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस एरिया में है. तुम्हारा इंटरेस्ट किस एरिया में है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. एंड
you should start working on it. So a 10 minute a day, and maybe 2 days all by yourself, without, that trip has to be minus entertainment. No party at night, nothing at night. It is talking to yourself. It's 2 days with yourself. 10 minutes with yourself every day. Believe me, if you start working it from right now, I'll give you my email ID. You can write to me and tell me it has actually changed your life. Do it for 25 days. Do it for 25 days. And believe me, your life will change. You want to be, all the students who want to do well as far as placement is concerned in terms of job. अगर आप entrepreneurship नहीं लेके अगर आप job पे जाना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि आपको कितना skill चाहिए to get into a top company. How much hours of hard work you require? Any cases? You require just 1 hour a day for at least 1.5 years. आपको मालूम है एक्सीलेंट वोकैबुलरी कितने घंटे में आ जाती है? एक्सीलेंट वोकैबुलरी कितने में बता आपको? किसने बोला? Our average brain can learn 15 words an hour. Average brain. आप लोग सब एवरेज हैं, उससे कम तो नहीं है कोई? क्यों कम है? हाथ उठा दे कि एवरेज से कम हो गई। सर एवरेज से कितने अच्छे हैं? So I like this spirit. You should be honest. Yes. So if you consider yourself an excellent vocabulary, should have 4,000 English words. It will take you 300 hours to learn top English words. As far as programming goes, C, C++, data structures, algorithm, Java, Python. अगर आप इसको ठीक तरीके से, अगर आप ये नहीं सोचें कि मेरी पढ़ाई है, देखिए there are 2 approaches when you study, when you come to the college. एक है मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, दूसरा क्या है मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ. दोनों में परसेप्शन चेंज हो जाता है. The perception changes. और जैसे परसेप्शन चेंज होता है वैसे आपका रिजल्ट चेंज कर जाता है. क्योंकि जब आप अपने लिए पढ़ते हैं तो आप उसको सीखते हैं. वरना कैसे लोग, वरना मैं करीबन 10 साल पुरानी बात होगी, मैं ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में गया, तो वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो वहाँ पर एग्जाम से पहले लगा ऐसे पढ़ रहा क्योंकि ऐसे कर रहा था. मैं उसको बहुत देर तक देखा, मैं आधा घंटा किसी का वेट कर रहा था. सर्दियों के दिन मैं उसमें खड़ा हुआ था, मैं देखा सारा उसमें तो घूम के पढ़ रहे थे. तो मैंने कहा इंजीनियरिंग में कौन सी चीज़ ऐसी याद करनी पड़ती है. और उसके पास एक लड़का गया तो पूछने के लिए बता ऐसा लगा कि जैसे आप लोग डांस में आप देखते थे ना, एक मटकी उसमें छोटी मटकी, उसमें छोटी मटकी, छोटी मटकी, ऐसे होता था ना जो रखे, ऐसे लग रहा था 10 मटकी रख के चलना, अगर पूछोगे तो एक चैप्टर उसके सर से गिर जाए, उसको हिला गया. तो जब मैं स्कूल का सेमिनार लेता था तो पूछता था कि सबको पता लग जाता है कि एग्जाम जो है 16 तारीख से है. एग्जाम को मानी पता लग गया 16 अप्रैल से एग्जाम है, ये आपको फरवरी मिड में पता लग गया. हम पढ़ाई कर शुरू करते हैं. मुझे ग्रेटर नोएडा में बच्चे ने बोला था लास्ट नाइट बेस्ट फाइट. सो मैं बोला कि सर एक दिन पहले पढ़ते हैं. तो हम उसको कहाँ स्टोर करके जाते हैं? अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करेंगे, हम कहाँ स्टोर करके जाते हैं उसको? We store it in the RAM, क्योंकि हमें तुरंत एक्सेस ही. अरे ये कल पढ़ा था, पेज नंबर 64 पता मैंने, ये लोगों ने इसको हाईलाइट भी किया था. हाँ क्या था. कोशिश रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. और जब कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते तो आप कहते हैं अरे क्वेश्चन देखना इस वाले पेज पे, पेज नंबर 64, मेरा पेज भी थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसमें खाना भी लगा होता है, तो इतना भी उसको रैम में स्टोर करके जाते हैं. ठीक, अब रैम में स्टोर किया, एक्सेस जल्दी दिया, उसके बाद जब हमको अगले दिन कुछ और स्टोर करना होता है उसको भी हम कहाँ स्टोर करते हैं? रैम में करते हैं. तो जब पहले रैम में स्टोर किया था उसको तो हमें रेस करना पड़ेगा, रैम में तो मेमोरी नहीं होती है. रैम में तो मेमोरी नहीं होती है. और आप लोग तो वैसे भी कोविड वाले हो. कितने लोगों ने ऑनलाइन चला के सिर्फ अपनी फोटो लगा दी हो, पता नहीं है, बोले हैं सर एक सेकंड सर आवाज नहीं आ रही सर, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है सर. मेरा 13 साल का अगर बच्चा
बच्चा करता था, आप लोग भी करते होंगे, पक्की बात है। वो क्या करता था, 8 बजे क्लास शुरू होता था, ऑन करके हाँ मैम यस मैम करके और धीरे से बैठ जाता था और उसका स्पीकर थोड़ा सा तेज कर देता था कि और ऐसी एंगल पर रखता था कि हमको सुनाई दे कि क्लास चल रही है और वो अटेंटिव है। और 15 मिनट बाद देखो क्या हुआ, अब अभी टीचर कहती बाकी बच्चे नहीं यार लिंक नहीं मिल रहा, टीचर गायब हो गई थी। So if you study one day before, you are studying to pass the exam. But if you are studying a month before, you are studying for your career. And if you are studying every day, you are doing something for a wonderful thing which you have got this life. This is something that you have to decide. और अगर आप किसी के प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हो या आप कोई काम लाइफ में करोगे तो कभी सक्सेस होगे। मैं एक और एग्जाम्पल लेके बच्चों से बात करता हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और बच्चों को बताता हूँ कि योर बिहेवियर इन लाइफ, लिसन टू मी आउट वेरी केयरफुली, योर बिहेवियर इन लाइफ इज समथिंग हाउ यू यूज अ पब्लिक टॉयलेट। एक नीट एंड क्लीन पब्लिक टॉयलेट को आप कैसे यूज करते हैं, आपकी लाइफ इसी से आपको पता लगती है। जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो क्या करते हैं, when you go inside the toilet, what do you do? First thing what you do is you lock the door so that nobody is able to see, right? लाइफ में भी ऐसी है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किताब खोल के आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ आपको पता है। This only you. And how responsibly you use that toilet defines your true character. It defines your true character. So if you will work कि मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट देनी है कल, अगर आप ये करेंगे अरे मुझसे पूछेंगे मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अपने करियर में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में और जॉब में। लेकिन अगर आप ये सोच के करेंगे कि ये मेरा काम है, whether somebody asks me or does not ask me, I have to do it. It is my responsibility. अगर आप उस पब्लिक टॉयलेट को बिल्कुल उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे आप अपने पर्सनल टॉयलेट को यूज करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप सक्सेसफुल हैं। It's not so good example to hear, but that is how it is. क्योंकि आप जानते हैं लाइफ में कि आप अपने आप की लाइफ के साथ, अपने समय के साथ क्या करते हैं। देखिए, हमारे माँ बाप हमको एक पॉइंट तक फीड कर पाएंगे, ठीक है, हो सकता है उसके बियॉन्ड भी फीड करते हैं, हमको उसके बियॉन्ड भी खाना खिला देंगे, ऐसा नहीं माँ बाप निकालेंगे नहीं करते। लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके दोस्त मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपकी बहन, दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, इट विल पिंच यू। इसलिए नहीं कि वो अच्छा कर रहे हैं आपको खराब लग रहा है, आपको क्या लगेगा, मैंने क्या मैं कम केपेबल था, नहीं, the answer will come, I was not less capable. Why? I wasted a lot of time. So in my entire journey, I was just telling one of my team members today before coming to this place, कि stop using a word called as because. Because का मतलब क्या होता है? क्योंकि। अगर इस वर्ड का हम संधि विच्छेद करते हैं, we break this word, it is be a cause, and this is the word because is the cause of failure in life. I did not do it because, I did not do it because, and आप एनालाइज करिएगा, 10 में से 9 बार आपने उस काम को किया नहीं होता है, हम कोई ना कोई उसका बहाना बना रहे हैं। बट अगर आप अंतर आत्मा में झांक के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक्चुअली मैं कर सकता था, नहीं कर सकता। वो रात को 10 मिनट जब आप बैठेंगे अपने साथ में, तब आप पूछेंगे अपने आप से, क्या मैं इस काम को कर सकता था, हाँ या ना? क्या मैंने आज कोई झूठ बोला, हाँ या ना? आज मैंने किसी का मजाक उड़ाया, हाँ या ना? और उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है कि मुझे कौन कौन सी चीजें कल नहीं करनी है, what I should be doing, and keep a tab on it. This will help you through the entire journey as a student, as an entrepreneur. Remember, what you are going to sow now, the habits that you are going to sow now, are something which you are going to reap in future. If you do postponement, you are going to reap it badly. If you are not attentive,
वही आप अगर किसी के लिए पढ़ रहे हो कि यार क्लास के अंदर इसलिए क्योंकि टीचर ने कहा है, क्योंकि PSIT डांट पड़ती है या फाइन पड़ता है, मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन बता आप समझिए कि आपको क्लास के अंदर लाने के लिए अगर किसी को आपको धक्का देना पड़ेगा आपके करियर के लिए, पढ़ने के लिए, तो इससे ज्यादा पूरी चीज को ढूंढ सकते। इट इज योर लाइफ एंड बिलीव मी, मेरे फादर थोड़े स्ट्रिक्ट थे और मैंने बताया कि जैसे मेरा उनसे 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन आज मैं रियलाइज करता हूँ अगर वो नहीं होते या इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते तो शायद मैं बिगड़ा बच्चा होता, शायद आप लोग आपसे बोलने बात ही नहीं करता। आई रिमेंबर टेकिंग अ सेशन एट IIT अबाउट 2000 का IIT ट्रेनिंग का 2008 में कराई थी ना, 2008 में आई डिड माय फर्स्ट समर ट्रेनिंग विद IIT कानपुर इन 2008 और तब वहाँ पर लेक्चर हॉल 7 का सबसे बड़ा लेक्चर हॉल था, तकरीबन 500-600 की भीड़ आती थी। तो हमने समर ट्रेनिंग की थी, वहाँ काफ़ी सारे बच्चे थे, मैं उस दिन उन्हें पेरेंट फादर को ले गया अपने साथ में। तो हमने उनको बोला कि आप कहते थे कि हम कुछ नहीं कर पाते, चलो आज आपको दिखाते हैं पापा हम क्या करते हैं। तो मैंने कहा, पापा को बोला अरे हम कहाँ आएंगे क्या करेंगे, उनका मुझे उड़ती फिर के ले आया, उनको आगे दिखाया एंड आई स्पोक एक्सटेम्पोर टू अबाउट 600-700 स्टूडेंट्स। तब जोश भी ज़्यादा था, पहली बार एक्टिविटी कर रहे थे, तो आई टुक अ सेशन फॉर अबाउट एन आवर एंड अ हाफ एंड I got a standing ovation for almost 25-30 seconds. The students kept on clapping, and the happiness on my father's face. I mean, I still remember. मतलब मैंने शायद उनको जीवन में इतना खुश शायद कभी देखा नहीं होगा। मतलब वो खुशी को रोक भी रहे थे, हंस भी रहे थे और खुशी को रोक भी रहे थे, क्योंकि बड़े लोगों की आदत होती है ना कि अपने हैप्पीनेस को थोड़ा सा वो करते हैं। I could see that. I could see something in his eyes also. मदर भी बड़ी खुश हो रही थी, मतलब मैं देख रहा था लाल हो रहा था उनका, she was getting all red and she was very thinking अरे वाह क्या है क्या नहीं है। तो बाहर निकल के आया, मुझसे कहते हैं कि यार तुम मतलब बिना देखे करके बोल लेता है। मैं पापा से कहता था जितने बाबा बाबा बोलते हैं उनसे अच्छा बोल दूंगा। मैंने कहा मुझसे कहा था ज़्यादा मत बोला करो, तुम्हारा देख लो पापा मत। And the happiness I could give it to them. I mean that feeling, I mean I can't even explain it in words. I want you all to get to bring that happiness to your parents and to your family. And when we talk in terms of a journey of entrepreneurship, when we talk in terms of your future, let me tell you, India as a country is at such a place. I mean, you are at the best time when the country could be in the, मतलब ये समय country के लिए और आपके लिए इससे अच्छा समय हो नहीं सकता। You are young, you have exposure, you have ideas, you have company, you have got like-minded friends, you have got internet at your disposal. There could be no best time for you to enter into entrepreneurship. People who want to go into job, no issue. Go into job. Work for 5 years, 10 years. Entrepreneurship में कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ती हैं जो शायद जॉब में नहीं होती। For example, and when you enter into entrepreneurship, तो आपको अपने हाथ को गंदा करना पड़ता है। मैं तो बहुत सारी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मैंने बहुत सारी कंपनीज की जर्नी बहुत ही बेसिक लेवल से देखी हुई है, और उसमें से हमारे सबसे छोटी जर्नी जो नाम सब बच्चों को पता होगा, बताइएगा, जो नाम सब बच्चों को पता होगा, हमने उसकी जर्नी कहाँ से देखी हुई है, इसको कौन सी कंपनी थी वो, जिसका नाम सब बच्चों को पता होगा, इंटरनेशनल नाम सुना आपने? Sarvesh Agarwal is a close friend of mine, and I have seen his journey. He was a single man person. In 2011, we became friends. We started working. I'm still very good friends with him. We talk often, and I have seen his journey. He was focused. कि मुझे ये करना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे आपका जो है मुझे बच्चों की इंटर्नशिप करवानी है क्योंकि मिलती नहीं है। फोकस्ड, यू हैव टू, आपको अपने हाथों को गंदा करना है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में चाहते हैं। आपको रोज नया लेसन सीखना पड़ता है,
वाइंडिंग और अनवाइंडिंग रोज करनी पड़ती है। वाइंडिंग समझते हैं? लपेटना, आपने लपेटा और आपने पाया जो आपने लपेटा था वो ठीक नहीं था, आप उसको फिर से खोलते और बिलार में फिर से। The fear of failure should not be there in your heart or in your mind. There should be no fear of failure. Remember, you never fail. Whenever you fail, you don't fail. You learn. You learn one method of not doing the thing the wrong way. बल्ब एक तरीके से बनता है और 999 तरीके से नहीं बनता है। Knowing what will not work is as important as knowing what will work. ये आपकी लाइफ के साथ भी है और आपके बिजनेस के साथ भी है। And never be disheartened with your failure. हुआ, उससे आपने लर्निंग ली, मूव अहेड, मूव अहेड. So as I told you, you are not a human being, you are a dream working on two feet. And if you don't have a dream, then there is something terribly wrong. हमको क्या करना है, हमको ये तो पता होना चाहिए जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का गोल क्या है, 6 महीने बाद का गोल क्या है, 1 साल का गोल क्या है, पढ़ाई में गोल क्या है, हमारी लुक्स में हमको कैसे इंप्रूव करना है, लुक्स में कैसे इंप्रूव करना है। मैं ये नहीं कह रही कि अपना चेहरा नोच लो कुछ कर दो, सिर्फ पतले हैं तो मैं बॉडी अच्छी बनानी है, आई शुड बी एथलेटिक इन नेचर, आई शुड वर्क ऑन माई हेल्थ. Every aspect of your life will be worked on. How good is my communication skill? How good is my programming? How good, where I would like to reach? और मैंने कहा मेंटर के लिए आपको कोई बहुत बड़ा आदमी चाहिए, मेंटर आपके आसपास ही अवेलेबल होता है। जो आपको ये कहे, मेंटर वो व्यक्ति होता है जो आपको ये कहे फोकस रखो, कॉन्फिडेंट रहो और सही राह पे चलते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि in 2009-10 I had built a huge business and 9-10 में there was a time मुझे लगा मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, बट चूंकि कोई प्लान भी नहीं था, शादी हो चुकी थी, I had a young kid, मैंने कहा अब तो मुझे इसी को करना पड़ेगा। Since I did not have, in 2011 I made a changeover, मतलब मैंने एक सेकंड गियर मारा और I instead of working with only with Kanpur, I started, I built a huge office in Noida. I started working with top colleges. 2017-18 में फिर लगा बीच में कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लॉस हो रहा है और दिक्कत हो रही है कैसे, क्योंकि मैं एक्सपेंशन काफी कर लिया था। 2020 में क्योंकि हम तो क्लासरूम ट्रेनिंग में थे, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में थे ही नहीं, बहुत कम थे हम। कोविड आया तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब आपको ज्ञान देने नहीं आया, मेरे लिए खुद इतने साल काम करने के बाद भी I used to be under that fear कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तब वो एक वर्ल्ड का मैप चलता था जिसमें कोविड के केसेस आते थे। मैं उस मैप को, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उस मैप को दिन में 200 बार देखता था, ये होप करते हुए कि शायद आज कोविड के केस कम हो जाए, शायद आज केस कम हो जाए, मेरी क्लासरूम ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाए। नहीं होगा, मेरी इतनी सारी टीम बैठी है, रेवेन्यू जीरो है, मैं कहाँ से दूंगा, मैं कहाँ से दूंगा, मैं कहाँ से दूंगा। I used to see that, आप मानिए रात को 12 बजे सोते हुए देख के सोता था वो मैं टोटल वर्ल्ड में कहाँ कितने केसेस हुए। नेक्स्ट जब उसका फिर वो नया ऐप आ गया था, इंडिया का ऐप आ गया था, तो covidindia.org आ गया था, उसको मतलब आप मान के चलिए मैं तब भी दिन में कम से कम उसको 40-50 बार तो देखता था, क्योंकि मेरे देखने से कोई चेंज थोड़ी होगा, बट वो फियर जो था वो मेरे अंदर था, क्या होगा क्या नहीं होगा क्या लगा। अब जो ऑनलाइन में जितने प्लेयर्स थे they were big, they were huge, they had money in their pocket. I did not have to, but thankfully the good work that we were doing, we landed up with an order of 15,000 students who could train online, and this was one of the biggest order executed by any company in India during COVID time. We trained 8,000 students simultaneously in about 18 different courses with a batch size of 60. So हमने करीबन 285 batches हमने पढ़ाए। और so learning ये मिली कि अगर आप अपने काम को अच्छे तरीके से करते आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ता निकलेगा।
mentor around you, find a person around you who is positive, who will always encourage you to work hard. जो आपके किसी चीज में अगर आप कम सक्सेसफुल होते हैं तब भी आपको encourage करे, चिंता नहीं करो, तुम करो, तुम कर सकते हो सकता है आपका कोई ऐसा मित्र हो, बहुत सारे 199 मित्र नहीं हो सकते, वो एक या दो ऐसे दोस्त होंगे। कोई दोस्त 20 लाख की जॉब में दोस्त को गिफ्ट नहीं कर देगा, अरे तुम मेरे दोस्त अच्छा तुम ले लो, मैं दूसरी जॉब लूंगा, 10 की मिल जाएगी, तुम्हारे को ज्यादा जरूरत है, वो देता जॉब किसी को? Find a mentor who's around you, who will guide you towards this entrepreneurship journey, who will guide you towards your career, and that person has to be someone close to you, to whom you can confide. यार एक गलती कर रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अब आपको encourage करे, करो, I am there, I'll help you, I'll assist you. और when it comes to entrepreneurship, अब तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, स्टार्टअप्स में टैक्स हॉलिडे है, स्टार्टअप को लोन मिलता है, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। You have to just push your brain a bit. You have to just push your brain. I can tell you that your college has started moving in a different direction. ऐसा नहीं कि आपको क्लास कॉलेज में आना होगा करनी पड़ता, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन they have started moving in a different direction. Very focused. The college has started working towards innovation, incubation and entrepreneurship also. There are quite a few things which I can't reveal to you right now, but your college is focusing very heavily on that. We may be very soon coming up with some nice center of excellence. I'm not supposed to say that, but I can tell you. I had very small meetings with your chairman, but in last 4 meetings that I had with him, they were for about 3 hours, 2 hours each meeting. And the way they are envisaging the SIT to be, or your college to be, I mean, I have to tell you that the college has vision. But the vision will not materialize till the time the subject matter in that particular college will think about it. Dream big, work hard towards that. And believe me, literally believe me, the world is going to be at your feet. First of all, आपको भी ड्रीम है कि नहीं है? Everybody has a dream or not? पहले मुझे बताइए, ड्रीम है कि नहीं है? सबकी ड्रीम है? आधे लोग तो बोल भी नहीं रहे। Do you all have dreams? Yes, sir. Good. How many want that dream to be fulfilled? Raise your hands. ये क्या होता है? Young people of the country. Yes. How many of you keep a hand on their heart and say, how many of you are working towards it? One hand has to be on the heart. You have to be honest with yourself. Okay, I have not seen. How many? Everybody close their eyes. Everybody close their eyes. It's an activity. Close your eyes. Everybody. Nobody will see each other. Now put a hand on their heart and say, how many of you are working toward it? How many of you see that difference of working it makes to your life? Can you see it? Yes. Work hard, yes. I mean, young people. मतलब मैं सब कुछ अपने जीवन का आज की डेट में अपनी परिवार को छोड़ के मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो भी मैंने कमाया है, जो मैंने नाम अर्जित किया है, जो मैंने फेम अर्जित की है, जितने मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। भगवान मुझे एक वर्ष के फिर से बनाते हैं। I want to be back with the thought that the number of mistakes that I had made in my life. Please don't do that. It's a promise as a friend that I would like to take from you. It's a promise I would like to take as a
as a speaker, you have to make a promise to yourself today, sitting in this room. ऊपर ईश्वर बैठा है, ऊपर ऑलमाइटी बैठा है. Let us promise to ourselves today that we will do justice to our life. We will work hard and we will live our dreams. Is a promise? Make your parents proud. Believe me, nothing in life can give you more happiness than that. I can tell you. Nothing in life can. And your parents don't want your money. Parents want their kid to succeed. Now that I am a father, I can understand these things far better than when I was not married. Never ever do. Dream big. Don't dream small. Dream big. एक होता है ड्रीमिंग एस्पिरेशन और एक होता है ड्रीमिंग लॉजिकल. एस्पिरेशन और लॉजिकल दोनों ड्रीम एक साथ करना है. एस्पिरेशन मीन्स I want to create a 200 crore or a 500 crore or a 1000 crore company. लॉजिकल एस्पिरेशन क्या है? मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? मुझे उसका रास्ते पे वर्क. I told you, इतना से कितने 120 स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे होंगे, अगर 50 स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे होंगे. You are dreamers. You have the potential to change the world. You have the potential to change your life and life attached to us, right? So before ending this session, I'd like to know, do you have any queries from me? कोई सवाल आपको मेरे से है? कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं? सवाल दो लोगों को नहीं होते. Two people in life don't have any questions. एक जिन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है और एक जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता है. तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं? समझ में आया है? अच्छा तो बताइए की टेक अवे फ्रॉम द सेशन टुडे. 2 or 3 key takeaway sessions, 3 key takeaways from the session that I've come here especially to talk to you. तीन या चार चीजें आप बताइए जो आपको लगता है कि आप यहाँ से लेके जा सकते हैं. हाँ मान सकता हूँ इस बात को, लेकिन मालूम है कई बार क्या होता है, हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते. तो इससे नहीं, इससे सोचते भाई हमारी आवाज अच्छी नहीं है और हम उधर तो गाना वाला बनना चाहते हैं, पर हमको सब कह रहे हैं बहुत ही खराब गाते हो. कोई बुराई नहीं है अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करने में. मेरी आवाज एक्चुअली में सही है. अगर 50 लोग कहते हो लड़ाकी में से तो मैं गाने वाला नहीं कर सकता हूँ, मैं म्यूजिशियन बन सकता हूँ. So one should do what one likes, but at the same time one has to be one should analyze oneself. It's very important. क्या another takeaway? मोटिवेशन. अच्छा आपने मोटिवेट किया तो बात पता लगेगा हमको. वो तो आप क्योंकि होता क्या है जब क्लास से बाहर निकलता ना आदमी सोचता है कि अब आपको लगा मुझे कुछ करना है, रोज 10 मिनट करूंगा, छुट्टी में जाऊंगा, टीचर से बात करूंगा, आज से तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा. अभी कमरे के बाहर निकलेंगे तो एक दोस्त जो है गले में हाथ डालेगा, कुछ ज्यादा इमोशनल हो चलेगा और सारा जो मोटिवेशन मिला वो देखिए. अब आप लोग क्या तो थोड़ा डिसिप्लिन है क्योंकि आप लोग रेगुलरली आते हैं. बाकी नॉर्मली कॉलेज में कैसे जब मैं एचपी की यूनिट पैकेट समर ट्रेनिंग कराता था तो एक लड़का आता था, सर डॉक्टरेट का कोर्स करना है. ठीक है. दूसरा आया, तुमने आपको क्या करना है? अब तुमने कर दिया डॉक्टर, हमको डॉक्टरेट. मैंने इसके साथ क्यों कर रहे हो? सर एक ही साथ बाइक पे आ जाएंगे, मैंने दोनों को अलग अलग आना पड़ेगा. अरे भाई तू अपना जीवन जी, अपना जीवन जिएगा.
एक और टिपिकल चीज है कि बुक चूंकि पीएसआईटी में नहीं है लेकिन बाकी कॉलेज में है। आपके यहाँ तो बायो ब्रेक होता है ना, बाकी कॉलेज में क्या होता है, एक लड़का टॉयलेट जाता है कहता है अबे आप तो टॉयलेट चलते। अब ये आज तक समझ में नहीं आया कि दोस्त को टॉयलेट जाने की क्या जरूरत है। He is not going to help you pee. अब all the places वो भी सब कर रहा है, वो वहाँ पे जाके अपना शीशा में देख रहा है, अपने बाल बना रहा है, पानी पीने जाते हैं और चलो पानी पीने। प्यास तुमको लगी जाओ पानी पीने, तुम्हें दोस्त क्यों चाहिए पानी पीने के लिए, हमें हर काम मिले दोस्त। अरे आओ ना चलो बाहर बैठे, अरे हमारा हम दोस्त के बिना कुछ ना, तो यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ, राइट। तो ये जोश आया है ये आपके अपने लिए है। Believe me, start doing that 10-minute exercise and I can assure you it can actually change your life. Just 10 minutes a day. Just plain 10 minutes a day. Start doing it. कुछ मत करना, जितनी बातें सुनी कुछ मत करना। आज से जाके बोला 30 डेज तक मैं रोज 10 मिनट अपने साथ बिताऊंगा या बिताऊंगी। And yes. हाँ। Okay. एक उंगली में ऐसा घाव लगा है कि डॉक्टर कहता है कि उंगली को काटना ही पड़ेगा वरना ये आगे फैलेगा। What is more painful, getting the arm amputated or the finger amputated? एंजाइटी किस लिए हो रही है? एंजाइटी किस लिए होगी? क्योंकि आपका कॉन्शियस जिंदा है। जिसका कॉन्शियस जिंदा नहीं होगा ना उसको एंजाइटी नहीं होगा, कहते छोड़ो क्या है। लेकिन जिसको अच्छा है वो आपको 10 रात को नींद नहीं आया उसकी वजह से, बहुत अच्छा है 20 रात नींद नहीं आया, क्योंकि 21वें दिन से आप करने लगोगे और आपको नींद नहीं आएगी। एंजाइटी बहुत होती है। मैं आज करता हूँ, मैं आपको लैपटॉप दिला मैं दिखाता हूँ, मैं आज भी एक्सेल शीट बनाता हूँ, पाता हूँ कि 4 घंटे मैंने प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया। It happens with the best of the people. So anxiety होएगी, तकलीफ होएगी, क्योंकि जब हम सच्ची बात अपने आप से करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमको अपने अंदर आत्मा में तो पता है हमने क्या किया है, टॉयलेट का दरवाजा बंद करके हमने कैसे यूज किया था, टॉयलेट हमें को पता है। So anxiety, जिसको anxiety हो रही है मतलब वो उस एक्सरसाइज को सच्चाई से कर रहा है। Anybody who is not doing this activity properly will not know. Right? So any further queries? Right. If you wish, you can note down my email ID. It is mukesh@rcplindia.in. rcplindia.in. mukesh@rcplindia.in. So I'll share it with you. You have my email ID. You can write to me whatever suggestions you want from my end. I'll give it to you. I'm available for help 24/7. आप मुझे रात को 12 बजे मेल लिखेंगे तो मेरे 10 बजे तक 99% चांस है आपके मेल का जवाब दे दूंगा, राइट। और ज़्यादा कुछ पूछना होगा तो मेल पे मैं आपको अपना फोन नंबर भी दे दूंगा, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। मैं कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ जो आपके माँ बाप और आपके बहन भाई या आपके कोई चाचा मामा या आपके दादाजी जो आपको बात बताएंगे, मैं आपको उसको दूसरे रिफाइंड फॉर्म में बताऊंगा। लेकिन होता क्या है, दूसरे की बात सुनने में ज़्यादा अच्छा लगती है बनस्पत के अपने करवा, ठीक है। आई एम देयर अवेलेबल फॉर यू। सो इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। It has been a fairly long session. You have been a patient audience listening to me. I don't know how much you have liked this session या कितना उससे आपको take away होगा. But from all of us, from the institution and from myself, I thank you all. May you have a wonderful life, earn a lot of money, name, fame, bring a lot of name and fame for yourself, for your parents, for your institution, and live a good and happy life. And most importantly, learn how to love yourself, because if you love yourself, you know So thank you sir for giving valuable time and sharing your story with us. So and I think the student will get motivated from here, and now they will start to think in the direction of entrepreneurship and the projects also, the social benefit projects. And once again thank you sir, and all the coordinators, Deepak sir, Saren sir, for coordinating this activity. So thank you all listeners, students.
Okay, thank you all. So students, you need to report to your classroom.